Hello friends, myself Mahesh Taylor, PGT Accountancy. We are continuously doing the practice of the questions that carries 8 marks in board examination of the chapter admission of a new partner. One more question I have made my own and put it in the board. Please just refer it. Creditors 18,000, general reserve 25,000, provision for doubtful debts 1,000, workmen compensation fund 15,000, employees provident fund 14,000, बैंक लोन 6,000, कैपिटल शशि अंशु 15 10 25,000, टोटल 1,04,000, डेटर्स 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, प्लांट मशीनरी 12,000, स्टॉक 11,000, बैंक 23,000, P&L account 10,000, advertisement suspense account 8,000. Now adjustment, Tanya is admitted as a new partner with 1/3 share. Right? Tanya is to bring 20,000 as capital and necessary amount for goodwill. New profit sharing ratio is fixed 4:2:3. Stock is found overvalued by 10%. Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years, which were 20, 15, 9 and 10,000. Plant and machinery is to be written down to 10,000. Employees provident fund is to be increased by 3,000. PDD, provision for doubtful debt, was made equal to 5% on debtors. Bank loan is paid with 600 interest. Keep in mind, with 600 interest. Half of the goodwill brought by new partner is withdrawn by the partner. Half of the goodwill is withdrawn. Now see here how this question can be solved. So I am just clearing the question. Please make a note or click or whatever you are doing. Shall I? Okay. Now, such questions, there may not be so many adjustment. I am putting adjustment because I just want to clear all type of adjustment within few sums. Very soon I am going to do the questions of capital adjustment. Right? Tomorrow Sunday, no videos. Sunday I am not putting any video. Now, answer. Revaluation account. Revaluation is a nominal account. We know very well, friends. It gives profit or loss. It gives the profit or loss on the revaluation of assets and reassessment of liabilities. Now, Sasi, Anshu, Tanya. Tanya is a new partner. Sasi, Anshu, Tanya. Right. Here, balance sheet of the new firm. Balance sheet of the new firm. Ready? Now, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन शुरू करना चाहिए? वेरी सिंपल फ्रेंड्स. सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो होता है डेट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है फ्रेंड्स? 15,000, 10,000. 15,000, 10,000. ये हो गया. अब फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, ओल्ड गुडविल, ये 3 चीज़ों को ढूंढनी चाहिए. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में नॉर्मली लायबिलिटी साइड पे ढूंढना है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी साइड पे. अगर लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, राइट, कंटीजेंसी रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं तो दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दे आर स्पेसिफिक रिजर्व. तो इन दो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्लेम चेक करना है कि कोई क्लेम है. मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में आएगा. तो एसेट साइड पे क्या ढूंढना होता है? ओल्ड गुडविल होगी तो एसेट साइड पे होगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एसेट साइड पे हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज अ लॉस
ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी एसेट साइड पे हो सकते हैं। तो दीज थिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, दो को छोड़ के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये दो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट। क्लेम है तो वो निकालने के बाद बचे तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ accumulated profit or loss at the time of admission of a partner. Please refer that video, you will get the idea. चलिए अब सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे देखते हैं जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व फ्रेंड्स 25,000 है। आई थिंक द रेशियो इज 4:1, यस 4:1। सो 20,000 5,000 हो गया। फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ क्यों आता है तो आपको बता दूं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्लोज करना, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का मतलब वो चीज़ क्लोज हो गई। अब रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट है, रिजर्व ऑलरेडी क्रेडिट है, इसीलिए तो लायबिलिटी साइड पे है। लायबिलिटी साइड पे कोई भी चीज़ होती है तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। एवरी लायबिलिटी हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, 11th स्टैंडर्ड से चलता आ रहा है, तो वो क्रेडिट है। उसे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में किसी भी चीज़ को क्लोज कैसे करते हैं, उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब अगर हम जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, राइट, इसलिए वो यहाँ आता है। या फिर दूसरा रट्टा मारू पैटर्न, सिंपल, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो क्या करना है, बैलेंस शीट टू कैपिटल क्रॉस। आप देखिए लायबिलिटी साइड से इधर क्रॉस हो जाएगा, बैलेंस शीट टू कैपिटल क्रॉस, नहीं समझ में आए तो, ठीक है। माय वर्ड इज बैलेंस शीट टू कैपिटल, कीप इन माइंड। चलिए जनरल रिजर्व के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। जब भी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पर पहले क्लेम चेक करो, कोई क्लेम है एडजस्टमेंट में, नो क्लेम इज देयर, राइट। और अगर कोई क्लेम नहीं तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 15,000 है, 12,000, 3,000 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। उसके बाद बैंक लोन है, कैपिटल है, सामने लैब एसेट साइड पे डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, बैंक। प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस, क्रॉस इफेक्ट to profit and loss account, to profit and loss account 10,000, 4:1 means 8,000, 2,000, 4:1 means 8,000, 2,000. Again advertisement suspense is given to advertisement suspense account. How much it is advertisement suspense, 8,000 is there, 5:1, 4, 1, 16, 5, 6,400 एंड 1,600। अब फ्रेंड्स बैलेंस शीट में से सारी चीज़ क्लियर हो गई और कुछ दिखता नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, तानिया इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। तानिया 20,000 कैपिटल ला रही है, हमारे पास बैंक बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक तानिया में 20,000। बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, बैंक बैलेंस 23,000 प्लस तानियास कैपिटल 20,000। मैं प्लस करने के बाद टोटल अभी बाहर नहीं निकालूंगा, लास्ट में निकालूंगा, कुछ प्लस माइनस और हो सकता है एडजस्टमेंट में। उसके बाद देखिए तानिया इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, तो जब गुडविल की बात आएगी तब सोचेंगे। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज गिवन। फ्रेंड्स ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ होता है तो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ होता है तो वी नीड टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो। सो हियर देखिए फ्रेंड्स, पार्टनर है शशि, अंशु, तानिया, उनका ओल्ड रेशियो है 4:1, न्यू रेशियो है कितना है, न्यू रेशियो 4:2:3, 4:2:3, राइट। फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइस याद है किसी को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला कितना है,
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट. सेक्रीफाइस कैन बी डन बाय ओल्ड पार्टनर्स. न्यू पार्टनर तो अभी आया है, वो क्या सेक्रीफाइस करेगा, वो तो सिर्फ गेन करेगा, तो उसका ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट. सबसे पहले सेक्रीफाइस शशि का ढूंढते हैं. ओल्ड शेयर कितना है 4/5, क्योंकि 4:1, 4/5. न्यू शेयर कितना है 4/3, 4/9, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 20, 45 इज इक्वल टू 16/45. करेक्ट. अब बात करते हैं अंशुल की. अंशु का है 1/5 ओल्ड, न्यू है 2/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 10/45 माइनस 1/45 गेन. व्हाट हैपन फ्रेंड्स कि यहाँ एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर में भी एक पार्टनर ऐसा है जो गेन कर रहा है. मीन्स टोटल सेक्रीफाइस इज डन बाय शशि ओनली, क्योंकि दो ओल्ड पार्टनर है शशि और अंशु. उसमें शशि ही सेक्रीफाइस कर, अंशु तो गेन करिए. मतलब जो गुडविल तानिया लाएगी वो सारी की सारी गुडविल शशि को मिलेगी. जो गुडविल तानिया लाएगी वो सारी की सारी गुडविल किसे मिलेगी, शशि को मिलेगी. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. अब लेट्स वर्क आउट फॉर गुडविल. गुडविल के लिए वर्कआउट कर लेते हैं. अब यहाँ तक पहुँचे ही है तो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है. गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर 20, 15, 9 एंड 10. ओके फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं. एवरेज प्रॉफिट टोटल डिवाइड बाई 4. 4 साल का प्रॉफिट है. 20,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000. 20 और 15 35, 35 और 9 44, 44 और 10 54. 54,000 डिवाइड बाई 4. 13 4 are 52. 13,500. दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट. गुडविल की बात करें फ्रेंड्स तो 2 years ऑफ परचेज मतलब इंटू 2. गुडविल इज 2 years ऑफ परचेज मतलब इंटू 2, दैट इज 27,000. गुडविल कितनी हुई 27,000. दिस 27,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म. तानिया की गुडविल है, गुडविल हमने फाइंड की है. फाइंड की मीन्स दिस इज फर्म्स गुडविल. लेट्स फाइंड आउट तानिया शेयर ऑफ गुडविल. ध्यान से फ्रेंड्स, जगह कम पड़ रही है, चलो यहीं पे कर लेते हैं. तानिया शेयर ऑफ गुडविल. तानिया का शेयर कितना है 1/3. 27,000 का 1/3 मतलब 9,000. 9,000 गुडविल तानिया लाएगी. वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है. तानिया इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल. मतलब तानिया 9,000 गुडविल लाएगी. किसके लिए, किसके लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओनली शशि. तो गुडविल का जर्नल एंट्री क्या है फ्रेंड्स, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल टू शशि. यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000. अब ये 9,000 किसको मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू शशि. सारा का सारा 9,000 शशि को क्यों मिल गया, बिकॉज सेक्रीफाइस डन ओनली बाय शशि. तो यहाँ पे देखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल शशि में 9,000, शशि में हमने 9,000 लिख दिया. अब लास्ट एडजस्टमेंट पढ़िए फ्रेंड्स. लास्ट एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द पार्टनर. मतलब इसकी आधी गुडविल कौन ले गया, शशि, क्योंकि वही ले जा सकता है ना. तो यहाँ पे देखिए टू बैंक 4,500. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, शशि टू बैंक या शशि टू कैश 4,500. शशि टू बैंक या शशि टू कैश 4,500. तो एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, 9,000 आया गुडविल के फॉर्म में, 4,500 वापस चला गया. 9,000 आया, 4,500 चला गया. तो अगर मैं यहाँ प्लस करूँ प्रीमियम फॉर गुडविल 4,500 तो भी करेक्ट है, बोर्ड वाले गलत नहीं देंगे. या फिर आप ऐसा प्लस करो प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000
माइनस ससीज कैपिटल 4500, मेरी बात समझिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 9000 प्लस करो, माइनस ससीज कैपिटल 4500 करोगे तो अभी इफेक्ट सेम रहेगा। मैंने सीधा 4500 प्लस कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि जो एग्जैक्ट फॉर्म में बचा है वो अमाउंट, राइट। 9000 आया, 4.5 तो शशि ले गया, तो बचा कितना, 4500। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अंशु ने गेन किया है, जो गेन करता है वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है। गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट, ये रूल है, गेन टू सेक्रीफाइस ऐसा बोला जाता है, गेन टू सेक्रीफाइस, गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट, गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, बताता हूँ सर। ये 1/45 गेन किया है अंशु ने, मतलब अंशु को फ्यूचर में इतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। आई रिपीट माई वर्ड, 1/45 जो प्रॉफिट है वो अंशु को फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा। किससे ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ तो एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, शशि, मतलब वो शशि में से ही उतना ज़्यादा उसे मिलेगा। तो बट नेचुरल है, अंशु विल ऑल्सो कंपनसेट टू शशि, ठीक है। हाउ मच, 1/45। वो अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो फर्म की गुडविल कितनी है, 27,000, 27,000 का 1/45 पार्ट, 27,000 का 1/45 पार्ट, ओहो 27,000 1/45 कितने से चलाते हैं, चलिए 9 से चलाते हैं, 9 3 ज़ा 15, 15 600 रुपये फ्रेंड्स, 600 रुपीज़, हाउ मच, 600 रुपीज़, इतना ए कंपेंसेट करेगा एस को, मतलब अंशु देगा शशि को, तो शशि क्रेडिट होगा और अंशु डेबिट होगा, शशि क्रेडिट होगा और अंशु डेबिट होगा बाय अंशुस कैपिटल, और यहाँ अंशु में 2 शशीस कैपिटल। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शशीस कैपिटल अकाउंट 600। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शशीस कैपिटल अकाउंट 600, ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। वापस क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये जो स्टॉक लिखा हुआ है ना 11,000, ये ऑलरेडी 10% ज़्यादा है, ये ऑलरेडी 10% ज़्यादा है। तो ध्यान से, सपोज 100% वैल्यू हमें चाहिए, पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी, 110%। आई रिपीट माई वर्ड, हमें ये वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट ये वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि 10% क्या है, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा लिखी हुई है, तो 110 पे 11,000, राइट, तो 100 पे कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। इट मीन्स फ्रेंड्स 1,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, तो कम करो। बच्चे क्या गलती करते बता रहा हूँ, 11,000 जो है उसी का 10% कर देते हैं सीधा, उसी का ये टेक्निकल पॉइंट है फ्रेंड्स। मैंने बताया, मैं खुद के सम्स बना बना के बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अपनी बुक पे लिख रहा हूँ, ताकि सॉल्व कर पाऊँ आपके लिए, राइट। और चीज़ें ढूंढ ढूंढ के विद इन फ्यू क्वेश्चंस आई वांट टू कंप्लीट द चैप्टर, घुमा फिरा के नहीं करना है सर। आप अगर किसी भी रेफरेंस बुक को देखोगे 80 90 100 सम्स तक दिए हुए हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, करें। मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो करा रहा हूँ वो बोर्ड में कर जाइए, 8 मार्क्स आपके पक्के हैं फ्रेंड्स, आराम से गारंटी देता हूँ। तो ध्यान से, ये 11,000 रुपये 110% पे हुआ, हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये, अरे 10,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू कम करनी पड़ेगी, वैल्यू कम करेंगे। एसेट की वैल्यू कम होगी तो दुख की बात है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो दुख की बात है। स्टॉक 1,000, और अब बैलेंस शीट में हम स्टॉक कितना दिखाएंगे, स्टॉक 10,000, न्यू वैल्यू दिखानी है, हमेशा न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू दिखानी है, तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 10,000, ये एक टेक्निकल पॉइंट था। उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन टू मतलब वहाँ तक, तो प्लांट एंड मशीनरी की एग्जैक्ट वैल्यू 12,000 है, उसे कहाँ तक कम करना है, 10,000 तक ला के रख दो, 12 से 10 तक लाएंगे मतलब 2,000 कम होंगे,
तो वैल्यू कम हुई, दुख की बात है। प्लांट एंड मशीनरी 2000। अब प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी वो भी 10,000 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू 10,000 लिख दी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 3,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो दुख की बात है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो दुख की बात है, राइट। तो यहाँ पे टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 3,000, एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 3,000। तो पहले कितना था 14, अब कितना हो गया 17। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 17,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बाद फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बाद पीडीडी वॉज मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। अब आपके डेटर्स देखिए 22,000 है, 22,000 का 5% होता है 1,100 रुपये। मेरी बात समझिएगा, 22,000 रुपये आपके डेटर्स है, 22,000 का 5% होता है 1,100 रुपये, ठीक है। और आप ऑलरेडी लायबिलिटी साइड देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 आप कर चुके हैं, तो और कितना करना है 100 रुपये कर देते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पीडीडी 100 रुपये, राइट। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप डेटर्स लिखो 22,000 माइनस 1,100 करके दिखाओगे तो भी चलेगा। आई रिपीट, आप डेटर्स जो 22,000 है क्वेश्चन में वो लिखो, माइनस पीडीडी 5% 1,100 करके डिडक्ट करके दिखाओगे तो भी चलेगा। या इधर, क्योंकि इसमें सेपरेट दिखाया है लायबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,100 लिखोगे तो भी चलेगा। पर अगर इधर 1,100 लिखोगे तो इधर डेटर्स का, अरे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंने एसेट साइड दिखा दिया, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहाँ आना चाहिए, लायबिलिटी साइड, बाय मिस्टेक। हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहाँ आना चाहिए, लायबिलिटी साइड, वो लायबिलिटी ही तो है। यहाँ पे देखिए डेटर्स कितना दिखाना है, मैं पूरा क्यों दिखा रहा हूँ 22,000, क्योंकि मैंने पीडीडी यहाँ दिखा दिया। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहो तो यहाँ 22,000 माइनस पीडीडी 1,100 करके आउटर कॉलम में दिखाओ, या 22 पूरा यहाँ लिखो और 1,100 इधर दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों सेपरेट दिए हैं इसलिए मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर डिडक्ट करके दिया होता तो मैं डिडक्ट करके दिखाता, पर अगर आप डिडक्ट करके दिखा रहे हो स्टिल इट इज़ नॉट रॉन्ग, बोर्ड एक्सेप्ट करता है। चलिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बाद पीडीडी हो गया। बैंक लोन वॉज पेड विद 600 इंटरेस्ट। अब बैंक लोन आपकी है फ्रेंड्स 6,000, आपने 600 रुपये इंटरेस्ट पे किए, मीन्स योर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। 6,000 की जगह कितना पे करना पड़ा 6,600। सो ये 600 रुपये जो इंटरेस्ट है इट इज़ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विच इज़ पेड। तो यहाँ पे देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600 रुपये, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और इधर फ्रेंड्स माइनस बैंक लोन 6,000, माइनस क्यों किया, पे किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 600 रुपये, उसे भी मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि पेड वर्ड है, पेड से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, पेड से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो फटाफट एक बार देख लेते, कुछ मिस आउट तो नहीं है। टानिया इज टू ब्रिंग 20,000 कैपिटल हो गया, न्यू प्रॉफिट सेंटर स्टॉक हो गया, गुडविल हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पीडीडी हो गया, बैंक लोन भी हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पहले नेट अमाउंट निकाल देते हैं, तो कितना आ रहा है ध्यान से, तो देखिए 6,600 निकालना है, राइट। तो वो कितना है 47,500, 47,500 में से 66 निकाल दिया, आई थिंक 40,900 है, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वो हो गया। अब बैलेंस शीट में कुछ बाकी है तो वो भी लिख दो, राइट। जैसे लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कितने आएंगे फ्रेंड्स 18,000, क्रेडिटर्स 18,000। क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पीडीडी आ गया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आ गया, बैंक लोन पेड हो गई, कैपिटल लिख दिया, मतलब लायबिलिटी साइड क्लियर हो गई। एसेट साइड डेटर्स आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आए, लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच लैंड एंड बिल्डिंग इज देयर, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। उसके बाद प्लांट मशीनरी आ गए, स्टॉक आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूट एड्रेस सब आ गया। अब सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन सारी इधर लॉस ज़्यादा है 6700 यहाँ रख दिया, 6700 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिफिट रिवैल्यूएशन लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, शशि अंशु उनका रेशियो 4:1 है, राइट। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक अब ओके फ्रेंड्स, इसकी क्रॉस इफेक्ट टू रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन अकाउंट 53601340। और फ्रेंड्स हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ टोटल करेंगे, ये टोटल करके हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज टू बैलेंस CD, राइट। यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा बैलेंस CD, ये हमारी कैपिटल बनेगी, यहाँ लिखना है हमें कैपिटल अकाउंट्स, राइट। शशि अंशु तानिया का तो ठीक है 20,000 ही आएगा, राइट। ये 20,000 मैंने यहाँ रख दिया, तो ये तो 20,000 ही आया। अब इसका देखते हैं, तो इसका हो रहा है 15 और 3 18, ये 18,000 हमने यहाँ रख दिया। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये 18,000 में से इनका टोटल कितना है, 5540, ये डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 12460, ये इसका डिफरेंस आया अंशु का। अब इसका भी टोटल देख लेते हैं, आई थिंक 56,600 आ रहा है, देख लेते हैं वापस एक बार। ओके फ्रेंड्स, ये 56,600 हमने यहाँ रख दिया, तो अब उसका चेक करते हैं। 56,600 में इस साइड का टोटल कितना है, $24,260, चेक कर लेते एक बार। ओके 0 3 2 3 32340, 32340, ये फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट हो गया 32340 और 121,12460 0
आई थिंक 64,800 हो रहा है, करेक्ट। Now rest is you need to do the total of balance sheet and your question is completed. Friends, please refer this question carefully, do the practice, stay at home, stay safe, good luck, have a nice day. Jai Mahesh.